ہم لوگ بہت ہی تنگ ذہن قسم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا نام سمینہ ہے۔ دادی مجھے سمینہ کہتی تھیں اور نانی سفینہ۔ دونوں کی ضد تھی اور میرے دو نام تھے، اور جس طرح سے مجھے یہ پرانے نام دیے گئے تھے اسی طرح سے میری زندگی کا فیصلہ بھی بچپن میں کر دیا گیا تھا۔ یعنی ادھر میں پیدا ہوئی اور ادھر سال بعد میرا کزن پیدا ہوا تو اسی کے ساتھ میری منگنی کر دی گئی۔ یہ فیصلہ میری دادی نے کیا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی مجھے پتہ بھی چل گیا۔ باقی کزنوں سے مجھے لگا یہ مذاق ہے۔ ایک دن امی سے پوچھا تو امی نے کہا کہ ہاں، اشفاق کے ساتھ تمہاری منگنی ہو چکی ہے بچپن میں، اور ہمارے خاندان میں منگنی کا مطلب نکاح سے کم نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب اس بات کا؟ تو کہنے لگی کہ تمہاری اس سے منگنی ہوئی ہے تو اس سے نکاح ہوگا، اسی سے شادی ہوگی، اور منگنی کو توڑنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ رشتہ تمہاری دادی نے جوڑا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں، اور یہ ان کی آخری خواہش کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کا مطلب اشفاق میرا ہونے والا شوہر ہے؟ ماں نے کہا ہاں وہی ہے، اور میں نے کہا مجھے تو اچھا نہیں لگتا بالکل۔ بیمار نے کہا کہ ابھی بہت ٹائم ہے تمہاری شادی میں، تب تک اسے پسند کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا امی کسی کو زبردستی کیسے پسند کرتے ہیں؟ ماں نے کہا ابھی سے کوشش کرو گی تو شادی تک پسند آ ہی جائے گا، کیونکہ شادی کا تمہاری اس کے ساتھ ہونے میں میری ماں خود ہی راستوں سے گزاری گئی تھی۔ ان کی بھی شادی بچپن میں میرے والد صاحب سے طے کر دی گئی تھی، اور ان کو بھی بابا بالکل پسند نہیں تھے، کیونکہ بابا تو ان سے 15 سال بڑے بھی تھے۔ ماں کا یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ اشفاق تم سے عمر میں بڑا تو نہیں ہے، نہ تمہارے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی، تم پریشان نہیں ہو۔ اس کا مطلب کہ میری زندگی کا پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ مجھے تو خواب سجانے کا بھی حق نہیں تھا۔ یہ سب باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا شور تھا۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہی زندگی ہے، شاید یہی قسمت ہے، لیکن پھر خیال آتا کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے تھا تو میرا وجود کیوں تھا؟ میری پسند ناپسند کیوں تھی؟ میں اسکول جاتی تھی تو سہیلیوں کو اپنی باتیں کرتے سنتی تھی، کوئی اپنے خواب بتاتی تھی، کوئی اپنے پسندیدہ رنگ کا ذکر کرتی تھی، اور میں بس سنتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے خواب کسی نے بچپن میں ہی دفن کر دیے ہیں۔ اشفاق کا ذکر گھر میں ایسے ہوتا تھا جیسے وہ پہلے ہی میرا حق ہو، اور میں اس کی امانت ہوں۔ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، نہ اس کی شکل ڈھنگ پہ غور کیا تھا، بس ایک نام تھا جو میرے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ جب کبھی اس کا نام سنتی تو دل میں بوجھ سا اتر جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کیا یہی میری پہچان بنے گی کہ میں کسی کی منگیتر ہوں، کسی کی ہونے والی بیوی ہوں، اور بس رات کو سوتے وقت اکثر آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ میں چھت کو دیکھتی رہتی تھی اور خود سے سوال کرتی تھی کہ کیا میری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں، یا صرف ایک وعدہ ہوں جو کسی نے کسی وقت کر دیا تھا؟ ماں کی باتیں صحیح تھیں یا غلط یہ میں طے نہیں کر پاتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ جو فیصلہ میرے لیے کیا گیا اس میں میری آواز شامل نہیں تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا حصہ تھا جہاں میں نے خاموشی سے سب مان لیا تھا، بغیر لڑے، بغیر سوال اٹھائے، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ بیٹیاں سوال نہیں کرتی، فیصلے قبول کرتی ہیں، اور میں بھی اسی راستے پہ چل پڑی تھی، حالانکہ دل کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ اب جب زندگی میں اتنا بڑا دکھ تھا، اتنی بڑی محرومی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ میری پڑھائی کی بات تو چل ہی رہی تھی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں آگے پڑھوں گی۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا، اور دل میں یہ خواہش مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ میں بی ایس کروں، لیکن یہ ممکن صرف اسی صورت میں تھا کہ میں کسی اچھے کالج میں داخلہ لوں۔ ہمارے گاؤں کا کالج صرف ایف اے تک تھا، اس سے آگے کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ میں نے ہمت کر کے گھر والوں سے بات کی۔ میں نے کہا میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ان کا رویہ وہی تھا جو ہمیشہ سے رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں اتنی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوڑو، ویسے بھی تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے اندر جمع ساری باتیں زبان پہ لائیں۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے کون سا مجھ سے پوچھ کے میرا رشتہ طے کیا تھا؟ مجھے اتنا حق تو دے دیں کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ گھر میں اسی بات پہ کافی دن تک خاموشی رہی، کسی نے صاف ہاں نہیں کی، کسی نے صاف نہ بھی نہیں کی۔ بس یہی سوچا جا رہا تھا کہ اگر میں پڑھتی رہی تو شادی میں دیر ہو جائے گی، اور یہی بات ان سب کو کھائے جا رہی تھی۔ اسی دوران اشفاق نے پہلی بار میرے لیے آواز اٹھائی۔ اسے بڑوں تک یہ بات پہنچا دی کہ اگر وہ میرے نام کے ساتھ منسوب ہے تو میرے فیصلے کی بھی کوئی اہمیت ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ خود بھی ابھی پڑھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھائی جاری رکھوں۔ جب یہ بات سسرال کی طرف سے آئی تو گھر والوں کے پاس انکار کی کوئی خاص وجہ نہ بچی۔ ماں باپ خاموش ہو گئے اور اجازت مل گئی۔
उस दिन मुझे पहली दफ़ा लगा कि शायद मेरी बात की भी कोई कीमत है। मेरा एडमिशन हो गया को एजुकेशन वाले कॉलेज में, क्योंकि मैंने जो सब्जेक्ट मुंतखब किया था वो वहीं पढ़ाया जाता था। सब ने यही कहा कोई बात नहीं, और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज का पहला दिन मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने पहली दफ़ा खुद को किसी फ़ैसले का हिस्सा महसूस किया। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी में अभी कोई रास्ता खुल रहा हो। मैं रोज़ तैयार होके कॉलेज आती थी, किताबें बैग में रखती थी और दिल में एक अजीब-सी खुशी होती थी। वहाँ नई लड़कियाँ थीं, नई बातें थीं, नए ख्वाब थे। मैं उन सबको देखती थी और महसूस करती थी कि शायद मैं भी कुछ बन सकती हूँ। मुझे ख़्याल अच्छा लगने लगा था कि मेरे पास भी एक दिन डिग्री होगी, मेरी अपनी पहचान होगी, मेरे अपने दोस्त होंगे, मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ किसी रिश्ते के नाम पे नहीं चलेगी। कॉलेज की फ़िज़ा में मुझे अपनायत सी लगती और मैं दिल ही दिल में शुक्रगुज़ार थी कि कम से कम इस हद तक मुझे साँस लेने की इजाज़त मिल गई थी। ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा था जहाँ दुःख के साथ-साथ एक हल्की-सी उम्मीद भी जन्म लेने लगी थी। वो जैसे कहते हैं ना कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मेरे लिए भी वही मामला था। अशफ़ाक़ के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। कभी-कभार शादियों पे एक-दूसरे को देख लेते थे, इसके अलावा ना कोई बात होती थी, ना फ़ोन पे कोई राब्ता। हमारे ख़ानदान में इस तरह की चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता था, और अशफ़ाक़ तो वैसे ही इस मामले में मशहूर था। उससे पहले ही सबके सामने ये बात कह रखी थी कि उसने अपनी बीवी को पर्दा करवाना है, तो बुर्का पहनाना है। बुर्का हमारे ख़ानदान में बहुत सी लड़कियां पहनती थीं। मैं बस चादर ओढ़ती थी, इसलिए उसकी ये बातें मेरे लिए थोड़ी अजीब भी थीं और भारी भी। लेकिन इसके बावजूद उसका मुझे पढ़ने की इजाज़त देना मेरे लिए हैरान कुन था। लोग बातें करते थे, कहते थे कि ऐसे ही बड़े-बड़े दावे होते हैं। शादी के बाद सब बदल जाता है। बीवी के मामले में मर्द नरम हो जाता है। मैं उनकी बातों को सुनती थी, लेकिन कोई राय कायम नहीं कर पाती थी। हमारी सिर्फ मंगनी हुई थी जिसकी कोई शरई हैसियत नहीं होती, लेकिन हमारे खानदान में उस मंगनी को बहुत बड़ा मामला समझा जाता था। ये समझा जाता था कि बस जुबान दे दी गई है, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं होता। मैं इस हकीकत को जानती थी, और शायद इसीलिए मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि जब तक ये वक्त मेरे हाथ में है, मैं इसे अपने तरीके से गुज़ारूँगी। मैं खूबसूरत थी, हसीन थी, जवान थी, और ये बात मैं खुद भी जानती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ाई भी करूँगी और उन दिनों को एन्जॉय भी करूँगी। कॉलेज जाना मेरे लिए सिर्फ़ तालीम नहीं था, बल्कि एक अलग दुनिया थी जहाँ मैं खुद को ज़िंदा महसूस करती थी। पैसों की कमी नहीं थी, मैं घर से ज़्यादा पैसे लेके जाती थी। दिल चाहता था तो कैंटीन से कुछ खा लेती थी। दोस्तों के साथ बैठती थी, हँसती थी, बातें करती थी। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी दोस्तियाँ बन गईं। मैं सबके साथ घुल-मिल गई। हम इकट्ठे खाते-पीते थे, कैंटीन जाते थे, क्लासेस अटेंड करते थे, पढ़ाई भी चल रही थी। और बाकी सब भी। मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं जितनी मैंने समझ ली थी। मैं हर दिन को जीती थी बग़ैर ये सोचे कि आगे क्या होना है। बस उस लम्हे को अपना समझ के गुज़ार रही थी। उस वक़्त मुझे वाक़ई मज़ा आ रहा था। मेरी दोस्त ने एक दिन मुझसे कहा कि ये जो हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता है ना, अली नाम है, वो तुम्हें पसंद करता है। मैंने चौंक के उसकी तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वह हँस के बोली, हाँ, वाक़ई वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे नहीं मालूम कब से, लेकिन ये बात अब पूरी क्लास में फैल चुकी है। सब उसे छेड़ते भी हैं और कहते हैं ये तो उस समीना को पसंद करता है। उसकी बात सुन के मेरे ज़हन में एकदम से कई मंज़र घूम गए। मुझे याद आया कि एक दिन वाक़ई उसने अपनी सीट छोड़ दी थी ताकि मैं पंखे के नीचे बैठ सकूँ। मुझे ये भी याद आया कि जब मेरे बैग से किताबें गिर गई थीं तो उसने फ़ौरन झुक के सब किताबें उठा के मुझे पकड़ाती थी। और उस दिन हमारी असाइनमेंट भी वहाँ जमा करवा के आया था, क्योंकि मैं देर से पहुँची थी। मैंने उससे कहा कि ये सब काम करने का मतलब ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे पसंद करता है। वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, जब कोई किसी को पसंद करता है तो वो इसी तरह उसका ख़्याल रखता है, उसके लिए कंसर्न दिखाता है। मैंने हँसते हुए कहा, तुम लोग ज़रूर मज़ाक कर रहे हो। लेकिन उसकी बातों ने मेरे ज़हन में एक बीज बो दिया था। उस दिन के बाद मैंने लाशऊरी तौर पे अली की हरकतों पे गौर करना शुरू कर दिया। हालाँकि इससे पहले मैंने कभी उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। वो मेरे लिए बस एक आम सा क्लास फ़ेलो था जो कभी-कभार मदद कर देता था। लेकिन अब मैंने महसूस किया कि वो वाक़ई मुझे देखता रहता था, मेरी बातों को गौर से सुनता था। अगर मैं खामोश हो जाती तो वो वजह पूछता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने मेरे लिए ख़त लिखा। ये ख़त लिखने का ज़माना नहीं था, लेकिन शायद वो इसी जज़्बे को क्लासिकल अंदाज़ में ज़ाहिर करना चाहता था। उसने वो ख़त मुझे दिया और उसमें अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। जब मैंने वो ख़त पढ़ा तो मुझे शदीद गुस्सा आया।
मैंने बगैर कुछ कहे वो खत फाड़ दिया और ज़मीन पे फेंक दिया। बदकिस्मती से उसने ये सब देख लिया। उस लम्हे मुझे लगा कि अब वो पीछे हट जाएगा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसके बाद उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करना शुरू कर दी। कभी सामने से देख के मुस्कुरा देता, कभी किसी बहाने से बात छेड़ने की कोशिश करता। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया। जब मैंने मैसेज देखा तो हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन पूछा, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? उसे जवाब दिया, नंबर तो मेरे पास बहुत पहले से था, लेकिन मैंने कभी मैसेज नहीं किया। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा तो फिर ये शराफ़त क्यों ख़त्म कर दी? इसी शराफ़त के साथ रहते। उससे लिखा, तुम मेरी मोहब्बत को क्यों नहीं समझ रही? तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो जैसे मैं तुम पे लाइन मार रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके अल्फाज पढ़ के मुझे किसी किस्म का यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा ये सब बस वक्ती जज्बात हैं। मैंने उसी वक्त उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन मसला यह था कि कॉलेज जाना तो छोड़ नहीं सकती थी। वहाँ से उसे ब्लॉक करना मुमकिन नहीं था। कॉलेज में वो फिर भी किसी न किसी बहाने मेरे सामने आ जाता। कभी सवाल पूछने के बहाने, कभी नोट्स मांगने के बहाने, कभी किसी काम में मदद की पेशकश के साथ। मैं हर बार सर्द रवैया अख्तियार करती और कोशिश करती कि बात मुख्तसर रहे। मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ मेरी मंगनी थी, एक तयशुदा ज़िंदगी थी जिसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स था जो अपनी मर्ज़ी से मुझे चाह रहा था, लेकिन मैं किसी को ये हक़ नहीं देना चाहती थी कि वो मेरी ज़िंदगी को मज़ीद पेचीदा बना दे। मैं जानती थी कि ये रास्ता ख़तरनाक है और इसका अंजाम मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैंने खुद को सँभालने की कोशिश की, लेकिन अली की मौजूदगी मेरे लिए अब एक आज़माइश बन चुकी थी जिससे बचना हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। मैंने अली को 2-3 दफ़ा साफ-साफ वार्निंग दी। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं सब कुछ बता दूँगी और बाकायदा शिकायत लगा दूँगी। वो मेरी बात सुन के एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रही हो? मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। उसे फ़ौरन जवाब दिया, दोस्ती इसलिए करना चाहता हूँ ताकि इस हराम रिश्ते को एक दिन हलाल कर सकूँ। उसकी ये बात सुन के मुझे शदीद गुस्सा आया। मेरे अंदर जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। मुझे लगा उसने मेरी हदूद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि अब खामोश रहना मेरी कमज़ोरी होगी। मैं सीधी एक सर के पास गई। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। हाथ काँप रहे थे, लेकिन मैंने पूरी बात बता दी। सर ने संजीदगी से बात सुनी और फ़ौरन अली को अपने कमरे में बुला लिया। मैं बाहर राहदारी में खड़ी थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। तकरीबन 15-20 मिनट तक सर ने ऐसे सख्त बातें सुनाई, उसे वार्निंग दी, उसकी बेइज्जती की और उसे बताया कि ये कोई मजाक नहीं, ये समीना वडेरे की बेटी है। अपनी औकात में रहो, यहाँ पढ़ने आए हो, तमाशा करने नहीं। ये बात भी कही गई कि वो हमारे सामने तो गरीब ही लगता था और ऐसे लोगों को हद में रहना चाहिए। मैंने दीवार के साथ खड़े होकर सब कुछ सुना। दिल में अजीब सा सुकून भी था और अजीब सा खौफ भी। मुझे लगा अब शायद ये सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। उस दिन के बाद उसके रवैये में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो पहले से ज़्यादा ज़िद्दी हो गया। उसने एक दिन मुझे देखते ही कहा, जैसे मजनू को ज़लील किया गया था, अगर मुझे भी वैसे ही ज़लील किया जाए तब भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसकी ये बातें मेरे लिए बोझ बन चुकी थीं। कॉलेज के दिन ख़त्म होने के करीब थे। मैं हर दिन ये सोच के जाती थी कि आज क्या होगा, कहाँ सामना हो जाएगा। मेरी दोस्त मुझे समझाती थी और कहती थी कि वो सच में तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन ये मुझे मोहब्बत कम और ज़िद ज़्यादा लगती थी। एक दिन मैंने सोचा कि शायद इज़्ज़त से बात करने से मामला ख़त्म हो जाए। मैंने उसे एक तरफ बुला के साफ-साफ सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरे मंगेतर की वजह से ही मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, वरना ये भी मुमकिन नहीं था। उसने मुझ पे एहसान किया है और हमारे ख़ानदान में मंगनी की बहुत बड़ी अहमियत है। हमारा ख़ानदान ख़तरनाक है। मैंने एक-एक बात सच-सच कह दी। मेरा ख़्याल था कि शायद अब वो पीछे हट जाएगा, लेकिन उस पर इन बातों का कोई असर न हुआ। उसने बगैर रुके कहा, तुम अपनी मंगनी तोड़ दो। मैं अपने घर से रिश्ता भेजूँगा तुम्हारे लिए और किसी को ये नहीं लगेगा कि ये मोहब्बत की शादी है। मैंने गुस्से और बेबसी के साथ कहा, कौन-सी मोहब्बत? मुझे तो तुमसे मोहब्बत ही नहीं है। हालाँकि सच ये था कि मेरे दिल में भी कुछ-कुछ बदलने लगा था। लेकिन मैं खुद उस एहसास को समझ नहीं पा रही थी। मैं उसे तस्लीम करने से डर रही थी। वो बार-बार कहता था, रिश्ता तोड़ दो, मैं रिश्ता भेजूँगा, और मैं हर बार एक ही बात सोचती थी,
ये रिश्ता मैंने जोड़ा ही नहीं तो मैं इसे तोड़ूँगी कैसे? मैं उस लम्हे पूरी तरह समझ चुकी थी कि मैं 2 ऐसे रास्तों के बीच खड़ी हूँ जहाँ दोनों तरफ कांटे ही कांटे हैं, और मैं चाह के भी किसी एक रास्ते का इंतखाब नहीं कर पा रही थी। मैंने उस सारे मामले के बाद अपनी दोस्त से खुल के बात की। हम कॉलेज के लॉन में बैठी थीं, पेपर करीब थे, माहौल में अजीब-सी खामोशी थी। उसने मुझसे कहा, देखो, अब तो कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, पेपर होने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ नहीं आएँगे। अब ये सोचो कि क्या करना है। मैंने उसकी तरफ देख के कहा कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझे डर लग रहा है कि किसी दिन मेरे घर ना आ जाए या किसी तरह मेरे घरवालों को पता ना चल जाए। अगर मेरे घरवालों को सिर्फ़ इतना भी मालूम हो गया कि ये मुझे पसंद करता है, तो वो यही समझेंगे कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ और मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ। वो जो भरोसा मुझ पे करके मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहा है, अगर वो टूट गया तो उसकी सज़ा मुझे ही मिलेगी। मेरी दोस्त ने मेरी बात गौर से सुनी, फिर थोड़ा-सा सोच के बोली, तुम एक काम करो, तुम उससे कह दो कि मेरी शादी हो रही है अगले इतवार को, और किसी और की शादी की तस्वीरें लेके मुँह छुपा के उसे भेज देना। वो समझ आएगा कि शादी हो गई है। वैसे भी अब इसके बाद हमें कॉलेज नहीं आना। जब उसे पता होगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो ना वो तुम्हारे घर आएगा, ना पीछा करेगा। बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। उसकी बात मुझे बहुत मुनासिब लगी। मेरे दिल में पहली बार सकून सा उतरा। मैंने कहा, बात तो ठीक है, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। आखिरी दफ़ा मैंने अली को उस दिन देखा था जब हम सब कॉलेज रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए आए थे। मैंने दूर से ही उसे देखा और दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस किया, लेकिन उस दिन उससे कोई बात न की, बस खामोशी से देखता रहा। इसके बाद कॉलेज आना ख़त्म हो गया। कुछ दिन के बाद हमारे ख़ानदान में एक शादी थी जिसमें मुझे जाना ही था। मैंने उस मौके को अपने लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। शादी के दिन मैंने दुल्हन के साथ काफ़ी वक्त गुजारा, वो भी मेरे जैसी दुबली पतली थी, कद भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। मैंने मौका देख के उसकी चंद तस्वीरें बना लीं, जिनमें उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। फिर मैंने वो अंगूठी जो मैं हमेशा पहना करती थी, उसकी उंगली में पहना दी और एक तस्वीर बना ली। उस तस्वीर में हाथ बिल्कुल मेरा ही लग रहा था क्योंकि अंगूठी मेरी थी। इधर अली का रवैया ये था कि वो मुसलसल मुझे मैसेज कर रहा था। चूँकि हम अब कॉलेज में नहीं मिल सकते थे, इसलिए वो मैसेज के ज़रिए ही तंग कर रहा था। मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया तो उसने नया नंबर ले लिया, फिर मैंने वो भी ब्लॉक किया, तो फिर किसी और नंबर से मैसेज आ जाता था। मैंने हिम्मत करके उसे एक दिन लिख दिया कि मेरे हफ़्ते बाद शादी है। उसे फ़ौरन जवाब दिया कि ये झूठ है, तुम मुझे बहकाना चाहती हो। मैंने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। जब पूरा हफ़्ता गुज़र गया तो मैंने वो तस्वीरें उसे भेज दीं। मैंने दुल्हन के हाथ की तस्वीर भेज दी और साथ में अपने हाथ की तस्वीर भी भेज दी। उसको बिल्कुल यही लगा कि ये मेरा ही हाथ है, क्योंकि अंगूठी वही थी जो वो अक्सर देखता रहता था। उस दिन के बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया, न किसी नए नंबर से, न किसी पुराने नंबर से, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। मैंने पहली बार लंबी सांस ली। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके साथ एक अजीब-सी राहत भी थी। मैंने खुद से कहा, लगता है मामला हल हो गया है। शायद उसे समझ आ गई है कि अब लड़की की शादी हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया। दिल ही दिल में बार-बार यही सोचती रही कि एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। मैं पास भी हो गई, मेरी इज़्ज़त भी महफूज़ रहे, मुझे मेरी डिग्री भी मिल गई और मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। घर वालों को किसी बात की खबर ना हुई, न किसी ने मुझ पे शक किया, न किसी ने सवाल उठाया। मैंने वो भरोसा भी नहीं तोड़ा जो मुझ पे किया गया था, और उस फैसले की कीमत भी अदा नहीं करनी पड़ी। मैं जानती थी कि जो रास्ता मैंने इख्तियार किया वो शायद मुकम्मल सच पे मबनी नहीं था। लेकिन उस वक़्त मेरे पास यही वाहिद रास्ता था, अपनी इज़्ज़त, अपनी पढ़ाई और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। उन दिनों के बाद मैंने एक बात अच्छी तरह समझ ली कि औरत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान वो वक़्त होता है जब उसे ख़ामोश रह के अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, और मैंने ये जंग अपनी हद तक जीत ली थी। एक दिन मुझे उसी दोस्त की कॉल आई जिसके साथ मैंने सब कुछ शेयर किया था। उसकी आवाज़ कुछ बदली-बदली सी थी, जैसे वो खुद भी हिम्मत जमा करके बात कर रही हो। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने हँसते हुए कहा, अब कौन-सी बुरी खबर हो सकती है? रिज़ल्ट तो आ गया है, इससे ज़्यादा बुरी खबर और क्या हो सकती है? मैं अभी हँस ही रही थी कि उसने अगला जुमला कहा, और वो जुमला मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी जुमला बन गया। उसने कहा, अली इस दुनिया में नहीं। मैं एकदम खामोश हो गई। मुझे लगा शायद मैंने ठीक नहीं सुना। मैंने कहा, क्या मतलब है? तुम क्या कह रही हो? उसे बहुत इत्मीनान से कहा, हाँ, जिस दिन उसे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, उसी दिन उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने फ़ौरन कहा, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी शादी तो हुई ही नहीं। हमने तो ये सब झूठ बोला था उसे रोकने के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकता है?
मेरी दोस्त ने रोती हुई आवाज़ में कहा, मैं अभी उसकी कब्र देख के आ रही हूँ। उसके घर वाले रो रहे हैं। वो इकलौता भाई था 5 बहनों का। बाप भी नहीं था घर का। वाहिद सहारा था और वो इस दुनिया से चला गया। मेरे हाथ काँपने लगे। मेरे जिस्म में जैसे जान ही न रही हो। मैंने बार-बार यही कहा, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो बार-बार एक ही बात दोहरा रही थी कि ये सब हो चुका। फिर उसने मुझे कब्र की तस्वीर भेजी और इसके बाद उसकी माँ की तस्वीर भी, जिसकी आँखें सूजी हुई थीं। चेहरा जर्द था और वो ज़मीन पे बैठी हुई रो रही थी। वो मंज़र देख के मेरे दिल में जैसे कोई चीज़ टूट गई। मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन फ़ोन बंद करने से हकीकत नहीं बंद हुई। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो गया। एक झूठ जो मैंने अपनी हिफाज़त के लिए बोला था, वो किसी की ज़िंदगी का ख़ात्मा बन गया। थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त का मैसेज आया। उससे लिखा कि अगर तुमसे कोई पूछने आए कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारा नाम ले तो तुम इनकार कर देना, और जो मैसेज तुमने उसे भेजे थे, वो सब डिलीट कर दो। कहीं ये मामला पुलिस का न बन जाए। ये पढ़ के मेरी घबराहट और बढ़ गई। मेरे हाथ पसीने से भर गए। मैंने फ़ौरन सारे मैसेज डिलीट किए। मैंने बार-बार अपने फ़ोन को देखा जैसे वो मुझे इल्ज़ाम दे रहा हो, लेकिन हकीकत ये थी कि अली ने जाते-जाते कोई सबूत नहीं छोड़ा था। उसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। वो बिल्कुल खामोशी से इस दुनिया से चला गया, जैसे उसने सारा दर्द अपने साथ ही दफन कर दिया हो। मुझे बताया गया कि जब उसे खबर मिली कि मेरी शादी हो गई है तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गया और चंद घंटों बाद ये कदम उठा लिया, क्योंकि ये खबर उसके लिए अचानक थी और अचानक मिलने वाली खबरें इंसान को सोचने का वक्त नहीं देती। मैं जानती थी, मैंने तस्वीरें भेजी थी। मैंने खुद उसे यकीन दिलाया था कि मेरी शादी हो गई है। मैंने ये नहीं सोचा था कि कोई इंसान इस खबर को अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा बना लेगा। उस रात मैं सो नहीं सकी। मेरी आँखों के सामने बार-बार उसकी तस्वीर आती रही। उसका ख़ामोश अंदाज़, उसकी बातें, उसका ज़िद्दीपन, सब कुछ एक-एक करके याद आ रहा था। पता नहीं मेरे अंदर क्या बदला। जैसे ही मुझे खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मोहब्बत मुझे महसूस होने लगी। मुझे समझ आया कि वो वाक़ई सच्चा आशिक था। वो ज़िद्दी ज़रूर था लेकिन झूठा नहीं था। मुझे अब एहसास होने लगा कि कोई मुझे सचमुच मोहब्बत करता था, बग़ैर किसी फ़ायदे के, बग़ैर किसी शर्त के, और मैंने उसे हमेशा शक की नज़र से देखा। मेरे दिल में एक ऐसा पछतावा आ बैठा जो किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मैं इस दुःख की वजह हूँ। मैं किसी से रो भी नहीं सकती थी। वो मुझसे महरूम रह गया और मैं उससे महरूम रह गई। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि वो उस महरूमी को बर्दाश्त न कर सका और मैंने उसे अपनी किस्मत समझ के जीना सीख लिया। कभी-कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता था जैसे वो मुझसे पूछ रहा हो कि क्या वाक़ई तुम्हारी शादी हो गई थी? और मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं होता था। मैंने पहली बार ये सीखा कि बाज़ झूठ वक्ती सहारा देते हैं, लेकिन उनके असरात ज़िंदगी भर का बोझ बन जाते हैं। अली इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी मोहब्बत का एहसास मेरे दिल में हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया, और ये एहसास मेरी ज़िंदगी का सबसे खामोश, सबसे गहरा दुख बन गया। कहते हैं कि कोई आपसे मोहब्बत करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस दुनिया में अक्सर लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, और मुझे मिली थी, लेकिन मैंने उसे यूं ही ठुकरा दिया। मैंने झूठ बोल के उससे धोखा किया, और मेरे एक झूठ की वजह से एक इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये एहसास मेरे दिल में साँस लेने नहीं दे रहा था। मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मुझे बार-बार रोने का दौरा पड़ने लगा। कभी अचानक आँखें भर आती, कभी सीना भारी हो जाता। मैं अपने आप को आईने में देखती थी तो भी रोना आ जाता था। मुझे अपना चेहरा अजनबी लगने लगा था, जैसे मैं वो नहीं रही जो पहले थी। मेरे घर वाले भी मेरी हालत नोटिस करने लगे थे। अम्मी बार-बार पूछतीं कि क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो? मैं बस यही कह देती कि कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंजती रहती कि अगर मैंने वो झूठ ना बोला होता, अगर मैंने वो तस्वीरें ना भेजी होती, तो शायद अली आज ज़िंदा होता। ये ख़्याल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने अपनी दोस्त लाइबा से बात की। मैंने उससे कहा कि मुझे अली के घर वालों से मिलना है। उससे पहले मुझे रोका और कहा ये ठीक नहीं, लेकिन मैंने ज़िद की। मैंने कहा हम झूठ बोल देंगे कि हम उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे और वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आखिर वो मान गई और मुझे ले गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो मेरा दिल मज़ीद बैठ गया। वो एक सादा-सा घर था जिसमें गुर्बत साफ नज़र आ रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई तो मुझे उसकी 5 बहनें नज़र आईं, जिनमें 2 बहुत छोटी थीं। उनकी आँखें सूजी हुई थीं जैसे बहुत रोई हों। उसकी माँ ज़मीन पे बैठी हुई थी, चेहरा बुझा हुआ था, लिबास सादा था और पूरा घर जैसे खामोशी में डूबा हुआ था। मुझे देख के वो हैरान हुई, शायद इसलिए कि वो इतना रो रही थी। मेरे आँसू किसी सूरत नहीं रुक रहे थे।
मैंने खुद को सँभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल का बोझ आँसू बन के बहता जा रहा था। लाइबा ने बस इतना कहा कि हम उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे और हमें बहुत दुःख हुआ है। माँ ने सर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी मेरे दिल पे और भारी पड़ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस घर की हर चीज़ अली की कमी का नूहा कर रही हो, जैसे दीवारें भी उसका नाम ले रही हों। मैंने लाइबा से आहिस्ता से कहा कि मुझे कुछ देर बाहर ले चलो। घर के बाहर कुछ दरख्त लगे हुए थे। मैं उन दरख्तों को देख के वहीं रुक गई। लाइबा ने बताया कि अली ने ये दरख्त अपने हाथों से लगाए थे। ये सुन के मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैं उन दरख्तों के करीब गई, एक दरख्त का एक पत्ता तोड़ा और उसे अपनी हथेली में दबा लिया। मुझे नहीं मालूम क्यों मैंने ऐसा किया, बस दिल ने चाहा। अली की माँ ने मुझे देख के कहा कि अली को पौधे लगाने का बहुत शौक था। वो कहती रही और मैं खामोशी से रोती रही। वापस आते वक्त मैंने लाइबा से कहा कि मैं हर महीने तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूँगी। तुम लोगों को अपनी तरफ से दे दिया करना, मुझे पैसों की कमी नहीं है। उससे पहले इनकार किया, फिर मान गई। घर आके मैंने वो पता अपनी अलमारी में रख दिया, लेकिन जब भी उस पर नज़र पड़ती मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मुझे लगने लगा था कि मुझे मोहब्बत मिली थी और मैंने उसे खुद ही गंवा दिया। डिप्रेशन, एहसास गुनाह, पछतावा और बेबसी, ये सब मिल के मेरे दिमाग के साथ खेलने लगे। कभी मैं बगैर किसी बात के हंसने लगती और कभी अचानक रो पड़ती। मेरी हरकत अजीब होती जा रही थी। कभी मैं रात को जागती रहती और कभी दिन में सोती रहती। कभी मुझे लगता मैं सब ठीक कर सकती हूँ और कभी लगता कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरे घर वालों ने यह भी महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ मसला है। अम्मी ने एक दिन कहा कि तुम पहले जैसी नहीं रही हो, तुम बहुत खामोश हो गई हो। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी कि मैं किसी की मौत की वजह बनी हूँ। मैं इस बोझ के साथ अकेली जी रही थी। मुझे हर वक्त यही लगता था कि अली कहीं न कहीं मुझे देख रहा है और मुझसे सवाल कर रहा है। मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं जान चुकी थी कि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन पूरी ज़िंदगी साथ चलते हैं। और अली की मोहब्बत का ज़ख्म मेरे अंदर हमेशा के लिए रह गया था। अब हालत ये हो गई थी कि मैं बार बार अली का नाम लेने लगी थी। बेख्तियार मेरे मुंह से उसका नाम निकल जाता। कभी मैं खामोशी से बैठी होती और अचानक कह देती, अली तो ऐसे नहीं था, अली ये कहता था, अली वो करता था। घर वाले चौंक जाते, सब पूछने लगते ये अली कौन है। अम्मी ने एक दिन सख्त लहजे में पूछा, तुम बार बार किस अली का नाम ले रही हो। मैंने घबरा के कहा, कोई नहीं, बस ऐसे ही एक नाम है। दोस्तों से भी सवाल होने लगे। वो घबरा के झूठ बोलने लगी कि शायद कोई क्लास फेलो था या कोई पुराना जानने वाला। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ये बात घूम फिर के अशफाक तक पहुंच गई। मुझे नहीं मालूम किसने उसके कान भरे या उस तक ये बात पहुंची, लेकिन अचानक उसका रवैया बदल गया। वही अशफाक जिसने मुझे पढ़ने की इजाज़त दी थी, वही अशफाक जिसकी वजह से मैं कॉलेज तक पहुंची थी, उसने एक दिन साफ अल्फाज में मंगनी ख़त्म करने का पैगाम भिजवा दिया। कोई वज़ाहत नहीं, कोई बात नहीं, बस ये कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। मैं सुन्न हो गई। जिस रिश्ते की खातिर मैंने अली से झूठ बोला, जिस ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए मैंने एक इंसान की मोहब्बत को ठुकरा दिया, जिस बचपन की मंगनी को मैंने तकदीर मान के कबूल किया, वो सब एक लम्हे में ख़त्म हो गया। उस दिन मुझे यूँ लगा जैसे मेरे दिमाग पे किसी ने पूरी ताकत से ज़रब लगाई हो। जो दुःख पहले ही अंदर जमा हो रहा था, वो अब कई गुना बढ़ गया। मैं बार बार यही सोचती रही कि जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, वो भी मेरे हाथ से निकल गया। ना अली रहा, ना अशफाक रहा, ना कोई रिश्ता, ना कोई सहारा, और मैं वाकई पागल सी होने लगी। अब बात सिर्फ रोने तक महदूद न रही। मुझे अली नजर आने लगा। मैं जानती थी वो हकीकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखाई देता था। कभी मैं सहन में जाती तो लगता वो सामने खड़ा है, कभी रात को कमरे में रोशनी बुझाती तो लगता वो दरवाजे के पास खड़ा है, कभी छत पे जाती तो यूं महसूस होता जैसे वो वहीं बैठा मुझे देख रहा है। मुझसे एक ही बात कहता, तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये जुमला मेरे कानों में गूंजता रहता। मैं चीख के कहती कि तुम अली नहीं हो, तुम मेरा वहम हो, तुम मेरा पछतावा हो, लेकिन वो गायब नहीं होता था। मैं खुद से बातें करने लगी थी। कभी उससे माफ़ी मांगती, कभी उस पर गुस्सा करती, कभी खुद को गालियाँ देती। मेरे घर वाले खौफ ज़्यादा रहने लगे। अम्मी कहती हैं अकेले क्यों बातें कर रही है। अब्बू कहते हैं इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। आखिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मुझसे बात की, लंबे सवाल किए, मेरी नींद, मेरे ख्यालात, मेरे डर, सब कुछ पूछा। फिर उसने कहा जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत नहीं है। ये मेरा शदीद एहसास गुनाह है या शायद मेरा पछतावा जो शक्ल इख्तियार कर चुका है। उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन बीमारी का ये नाम सुन के मुझे कोई सुकून न मिला।
दवाएं दी गईं, कमरे में बंद रखा गया, अकेला छोड़ा गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी ठीक ना हो रहा था। मैं जानती थी कि वो अली नहीं है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था जैसे मैं इस दुनिया में रह गई हूँ और वो कहीं और चला गया है, और इस फासले की सज़ा सिर्फ मुझे मिल रही है। मैंने एक सच्ची मोहब्बत को खो दिया, और जिसके लिए सब कुछ किया वो भी ना मिला। मेरे अंदर अब सिर्फ एक ही चीज़ जिंदा थी, वो था पछतावा, और वो हर दिन मुझे अंदर से मारता जा रहा था। मुझे अगर इस सब से निकलना था तो मुझे सच बोलना था। ये बात एक दिन अचानक नहीं आई। ये फैसला बहुत रातों की बेख्वाबी, बहुत दिनों के रोने, बहुत लम्हों की टूट फूट के बाद हुआ। मैं जितना खामोश रहती जा रही थी उतनी ही अंदर से बिखरती जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि अगर अब भी मैंने सच ना कहा तो शायद मैं वाकई इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहूंगी। उन दिनों में अली के ख़ानदान वालों की बहुत मदद कर रही थी। शुरू में ये सब मैंने दिल के बोझ से निजात के लिए किया था। फिर ये आदत बन गई। मैं उनके लिए राशन लेके जाती, बच्चियों के कपड़े, जूते, किताबें सब कुछ लाइबा के ज़रिए भिजवाती। फिर मैं खुद भी जाने लगी, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ जाके मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता था। उनके घर की खामोशी अब मुझे डराती नहीं थी, बल्कि वो खामोशी मुझे अपनी लगने लगी। अली की माँ जो मुझे देखती तो बस सर हिला देती, कुछ कहती ना, लेकिन उनकी आंखों में सवाल होता और मेरे दिल में जवाब। एक दिन मैं मज़ीद बर्दाश्त न कर सकी। मैंने उनके घर जाके उनकी माँ के पास बैठ के सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने एक एक बात बताई। मैं कौन हूँ, मैं क्यों झूठ बोलने पे मजबूर हुई, मैंने तस्वीरें क्यों भेजी, मैंने अली को रोकने के लिए ये सब क्यों किया। मैंने बताया कि मैंने उसकी मोहब्बत को शक समझा, खौफ समझा, बोझ समझा। वो औरत हैरान रह गई। काफ़ी देर तक वो मुझे देखती रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम ज़मीन पे ना बैठो। तुम्हारे बारे में तो उसने हमें बहुत कुछ बताया था। जब तुम पहली दफ़ा यहाँ आई थी तभी मुझे शक हो गया था कि कहीं तुम वही समीना तो नहीं, लेकिन ये नहीं पता था बेटा कि तुमने उससे झूठ बोला था। उसे मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए ये झूठ शायद एक रास्ता था, लेकिन मेरे बेटे के लिए वो झूठ उसकी ज़िंदगी और मौत के बराबर था। मगर फिर उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, तुम्हें भी क्या मालूम था कि वो ऐसा कर लेगा। तुमने ये सब अपनी इज्जत बचाने के लिए किया, तुमने किसी को धोखा देने के लिए नहीं किया। उस दिन पहली दफ़ा मुझे लगा कि मेरा दिल ज़रा सा हल्का हुआ है। जब उन लोगों ने मुझे माफ़ किया तो मेरे अंदर जैसे बरसों से बंद कोई सांस खुल गई हो। मैंने उनके कदमों में बैठ के रो रो के माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे उठा के सीने से लगा लिया। मैंने उसी दिन दिल में एक फ़ैसला लिया। मैंने उनके सामने कसम खाई कि मैं अली की सारी बहनों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैंने कहा, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है, ये मेरी सज़ा भी है। ये मेरा वादा है और मैं ये वादा निभाऊंगी। आज मैं 30 साल की हो चुकी हूँ। मैंने खुद शादी नहीं की। मैंने किसी रिश्ते को कबूल नहीं किया। मैंने 3 बहनों की शादी करवा दी है। बाकी तो अभी पढ़ रही हैं। मैं उनके घर रोज़ जाती हूँ। मैं उनकी माँ के साथ बैठती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनके दुख बाँटती हूँ। मैंने अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाके ये सब किया। शुरू में बहुत दुश्वार हुआ, बहुत बातें हुईं, बहुत सवाल उठे। मुझे कहा गया, तुम पागल हो गई हो, तुम क्यों एक अजनबी ख़ानदान पे इतना खर्च कर रही हो? तुम क्यों अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही हो? मैं खामोश रही, क्योंकि अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब कोई मेरे मामले में कुछ नहीं बोलता। सब जानते हैं कि मैं नहीं मानूंगी। मुझे समझाने की बहुत कोशिश की गई, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी डरा कर तो कभी रुला कर, लेकिन मैं कुछ न समझी, क्योंकि अब मैंने अपनी ज़िंदगी खुद जीने का फ़ैसला कर लिया था। कभी कभी रात को मैं छत पे बैठती हूँ तो मुझे ख़याल आता है कि मैंने ये सब इस मकसद के लिए किया है। मैंने अपने ख़ानदान के असूल तोड़ दिए, मैंने सबको नाराज़ कर लिया, मैंने सारी ज़िंदगी का नक्शा बदल लिया। अब फिर एक सवाल मेरे दिल में उठता है कि अगर यही सब मैंने अली के लिए कर लिया होता, अगर मैंने उस वक्त हिम्मत कर ली होती, अगर मैंने उस वक्त सच बोल दिया होता, अगर मैंने उस वक्त अपनी इज़्ज़त के साथ साथ अपनी मोहब्बत का भी दिफ़ा किया होता, तो आज मेरे पास वो भी होता और उसकी मोहब्बत भी। लेकिन फिर मैं ख़ुद को समझाती हूँ कि शायद यही मेरी किस्मत थी, शायद मुझे इसी रास्ते पर चलना था। शायद अली मेरी ज़िंदगी में इसलिए आया था कि मुझे ये सिखा सके कि मोहब्बत को पहचानना कितना ज़रूरी है और उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। आज भी मैं उसके दरख्तों के पास जाके बैठती हूँ। आज भी मैं उस पत्ते को देखती हूँ जो मैंने उस दिन तोड़ा था। आज भी मेरे दिल में दर्द है, लेकिन अब वो दर्द मुझे ज़िंदा रखता है। मैंने सीख लिया है कि कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती, लेकिन वो हमें मुकम्मल बना देती हैं, और अली की कहानी ने मुझे तोड़ के जोड़ा है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है, और अब मैं उस सच के साथ जीना सीख चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी अब एक खामोश बहाव में चल रही है। मैंने शोर वाली ज़िंदगी पीछे छोड़ दी है और अब न किसी से शिकवा है, न गिला। बस एक ठहरा हुआ सा वक्त है जो मेरे साथ चलता है।
میں صبح اٹھتی ہوں، کام پہ جاتی ہوں، شام کو علی کے گھر آتی ہوں، اس کی ماں کے پاس بیٹھتی ہوں، بہنوں کے حال پوچھتی ہوں، پھر خاموشی سے واپس آ جاتی ہوں۔ اب وہ گھر مجھے اجنبی نہیں لگتا، وہی مجھے اپناپن محسوس ہوتا ہے۔ علی کی ماں اب مجھے بیٹی کہہ کے بلاتی ہے۔ جب وہ بیمار ہوتی ہے تو مجھے یاد کرتی ہے، جب کسی بچے کا دل دکھتا ہے تو میرے پاس آ جاتی ہے۔ میں نے ان کے دکھوں میں خود کو بانٹ دیا ہے۔ شاید اسی میں مجھے اپنے گناہ کا کفارہ نظر آتا ہے۔ لوگ اب بھی سوال کرتے ہیں، رشتے اب بھی آتے ہیں، باتیں اب بھی ہوتی ہیں۔ مجھے سمجھایا بھی جاتا ہے کہ زندگی اکیلے نہیں گزرتی، لیکن میں ہر بار مسکرا کے بات بدل دیتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ ایک احساس چلتا ہے، ایک یاد چلتی ہے، ایک نام چلتا ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھار میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ کیا میں سزا کاٹ رہی ہوں یا کسی وعدے کو نبھا رہی ہوں؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہوں کہ شاید دونوں ہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کو کسی قانون، کسی رسم، کسی دباؤ کے مطابق نہیں رکھا۔ اب میں صرف اپنے ضمیر کے مطابق جیتی ہوں۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں تو میں اکثر جاگتی رہتی ہوں۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں، ہوا کے ساتھ درخت ہلتے ہیں تو مجھے علی کے لگائے ہوئے پودے یاد آ جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ اب بھی کسی نہ کسی صورت موجود ہے، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اب تم ٹھیک کر رہی ہو۔ میں نے اپنی زندگی کو کسی انجام تک پہنچانے کی کوشش چھوڑ دی ہے۔ اب میں صرف دن پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہر دن کو ایک ذمہ داری سمجھ کے جیتی ہوں۔ کبھی کبھی دل بھاری ہو جاتا ہے تو میں خاموشی سے رو لیتی ہوں، پھر خود کو سنبھال لیتی ہوں۔ مجھے اب کسی سے شکایت نہیں رہی، نہ تقدیر سے، نہ لوگوں سے، نہ خود سے۔ میں جان گئی ہوں کہ کچھ فیصلے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں کرنے دیے جاتے، اور کچھ فیصلے ہم وقت پہ نہیں کر پاتے، اور انہی کے درمیان زندگی ہمیں کہیں سے کہیں لے آتی ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ محبت صرف حاصل ہونے کا نام نہیں، محبت نبھانے کا نام ہے، اور کبھی کبھی محبت کا حق صرف خاموشی سے ادا کیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم خوش ہو تو میں کوئی جواب نہیں دیتی، کیونکہ خوشی کا لفظ اب میرے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میں بس مطمئن ہوں، اور شاید یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ میں زندہ ہوں، اور جب تک سانس ہے تب تک یادیں بھی ہیں، وعدے بھی ہیں، اور وہ راستہ بھی جس پر میں نے خود کو چلتے دیکھا ہے۔